Good morning, plus two commerce. So, today we will be doing the last topic of this chapter, that is communication. So, you all know what is communication: the way you talk to others, either with the help of words or through gestures, is communication. So, in simple words, we can say that whenever we are exchanging our ideas or views or any message, when we are transmitting our message to the other person, then it is known as communication. We can pass information, we can pass instructions, we can exchange ideas, we can tell about our views, exchange our views, and we can tell our message, exchange our message, and it is between two or more persons, right? Now, what in what way you can communicate your message, in what way you can actually transmit your message? You can speak, you can write through gestures, means when I'm doing some hand movement, for example. Then with the help of diagrams, pictures, graphs, I can explain you something. When I speak and you hear, it's a communication. Okay, so basically it is a two-way process, and this process of communication, it starts with the sender and it ends with the feedback. So minimum two persons should be there if we want to complete the process of communication. If I'm speaking alone, अगर मैं खुद से बात कर रही हूँ, it is not communication. At least one person should be there to say that yes, I'm communicating. Two or more than two, right? The way I'm talking to you, the way I'm teaching you right now is a communication. I'm speaking, you are listening. This is a communication. So now what is communication process, or what are the elements? So you can see in the table there are 7 elements. You can include noise also, it will 8. It will be 8 then. Okay, wait. So the first element of communication process is sender. Okay, now who is a sender? He is the person who has some message, who is conveying his or her message. मीन्स मेरे माइंड में क्या मैसेज है, और मैं पर्सन, जिस पर्सन के माइंड में मैसेज है, जो पर्सन बात करना चाहता है, ही इज़ द सेंडर. अगर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और मेरे माइंड में कोई आइडिया आता है, देन आई एम द सेंडर. ओके, देन सेकेंड इज मैसेज. सो वट एवर आइडिया आई एम हैविंग, वट एवर मैसेज और सजेशन, वट एवर लाइक, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कोई इंस्ट्रक्शन हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, कुछ भी, दैट इज़ द मैसेज. कंटेंट क्या है, मीन्स अगर आपके दिमाग में कोई बात भी आई है, दैट्स एन आइडिया, तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम उसे क्या कहेंगे? इट इज़ अ मैसेज. ओके, देन द थर्ड एलिमेंट इज इनकोडिंग. नाउ सपोज मेरे माइंड में कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, मेरे माइंड में कोई आइडिया आया, दैट इज़ अ मैसेज, लेकिन वो सिर्फ मेरे माइंड में है अभी तक. आपको क्या पता मेरे माइंड में क्या चल रहा है, जब तक मैं आपको बताऊंगी नहीं. बिना बताए तो आपको नहीं पता चलेगा. सो व्हेन आई पुट माई आइडिया इनटू वर्ड्स, मीन्स कह लो जैसे मैं व्हेन आई कन्वर्ट माई आइडिया इनटू सम लैंग्वेज, जैसे राइट नाउ आई एम स्पीकिंग हिंदी और इंग्लिश, ठीक है. तो जब मैंने अपने आइडिया को एक लैंग्वेज का रूप दे दिया उसको कन्वर्ट करने के लिए, देन इट बिकम्स इनकोडिंग, कि मैंने अपने मैसेज को क्या किया है, इनकोड किया है. आई हैव डन इनकोडिंग. Clear? When I put my message, when I convert my message into some language, that becomes. It is not necessary कि मैं उसको language में put करूँ. It can be a picture, it can be a graph, it can be any gesture. बस ये है कि जो मेरे माइंड में है उससे कन्वर्ट होके वो कोई ऐसा फॉर्म उसे लेना पड़ेगा कि वो दूसरे पर्सन को समझ आ जाए. सो दिस इज़ इनकोडिंग.
देन इज़ मीडिया, कि किस मीडियम से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, थ्रू फ़ोन, थ्रू इंटरनेट, थ्रू मोबाइल, किसी भी तरह से आप कर सकते हो। वर्बल मीडिया भी हो सकता है, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू इट्स अ वर्बल मीडिया। ओके, देन द नेक्स्ट इज़ डिकोडिंग। अब आपको मैंने मैसेज दे दिया, अब आपने उस मैसेज को समझना है। जब आप उस मैसेज को समझ जाते हो जो मैंने आपको भेजा था, इट मीन्स यू हैव इनकोडेड द मैसेज। अगर मैंने आपको, सपोज़ मैं अभी स्पेनिश बोलना शुरू कर दूँ, तो आप डिकोडिंग नहीं कर पाएंगे। जिस पर्सन को स्पेनिश आती होगी वो डिकोडिंग कर लेगा, आप नहीं कर पाओगे। बट बिकॉज आई एम स्पीकिंग हिंदी और इन इंग्लिश, you will be able to decode my message, whatever I'm speaking right now, because you know this language. Okay, so you have decoded, अगर आपको ये समझ आ गया जो भी मैं बोल रही हूँ, it means you have decoded my message. Okay, then the next is receiver. Who is the receiver? You all are receiver, जो मैसेज को समझ रहा है. Then the last and very important is feedback. Now suppose I come to your class and I tell you to that that there is some competition and you have to participate. I just come and I'll just speak my message and I just go. So what will happen then? मैंने आपका फीडबैक नहीं लिया कि आपने येस मैम बोला, नो मैम बोला, या मेरे से कुछ क्वेरीज पूछी या नहीं. मैं आई, मैंने बोला और मैं चली गई. दिस इज़ एन इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन, क्योंकि मैंने आपका फीडबैक नहीं लिया. लेकिन अगर आप मुझे आप कह दो कि येस मैम, ओके वी विल पार्टिसिपेट, और नो मैम वी विल नॉट, और यू आस्क मी सम ऑफ द क्वेरीज रिलेटेड टू इट, दैट मैम व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड सो ऑन, सो दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द मैसेज, क्योंकि हमने आपसे फीडबैक लिया है. अगर मैं फ़ीडबैक नहीं लूँगी, देन कम्युनिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, वो कंप्लीट ही नहीं है. इफ़ आई गो टू अ फैक्ट्री और मैं अपने वर्कर्स को कुछ बोल के आ गई, मुझे नहीं पता उनको समझ आया कि नहीं आया, कि कैसे काम करना है, कितना स्टॉक बनाना है, कितना नहीं बनाना है, मैंने बस बोला, मैं बाहर आ गई. सो दिस इज़ नॉट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि मैंने उनसे मैंने कन्फर्म किया इनकी क्या आपको समझ में आ गया. जब वो पर्सन कह दे कि येस मुझे समझ में आ गया, इसको इतना करना है, इतना बनाना है, देन आई कैन से कि येस माई कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ कम्प्लीट बिकॉज आई हैव टेकन द फीडबैक. सो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ there is one more term, noise. Now suppose when I'm talking to you and okay, this see, some birds are chirping right now, तो वो क्या है, आपके लिए नॉइज़ हो सकती है. Or when you play some YouTube video and some network error is there, या आपका नेट स्लो है, so that is a noise. मैं आपसे फ़ोन पे बात कर रही हूँ, पीछे से शोर आ रहा है, या कोई टेक्निकल इशू है, आवाज़ क्लियर नहीं है, that is a noise which should not be there if we want effective communication. Okay, now there are how many forms of communication is there? Basically there are two forms, formal and informal. सो ये नेम से ही अंडरस्टूड है कि इनका मीनिंग क्या है. सो फॉर्मल कम्युनिकेशन इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट इट इज़ एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन. जब मैं फॉर्मली आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, जैसे इफ़ आई एम इन ऑफिस, इफ़ आई एम इन स्कूल, आई एम टॉकिंग टू सम अदर टीचर और टू सम स्टूडेंट्स, देन इट मीन्स आई एम डूइंग formal communication. Okay, and most of the time this communication, it is related to the official matters. If I'm in school, it is related to school matters, nothing personal. अगर कुछ पर्सनल डिस्कस हो रहा है, it is not then formal communication, it will become informal. Just a second. Okay, so this formal communication can be in the form of, suppose when if I'm telling you about, oh goodness, if I'm telling, wait. Okay, so this formal communication can be in the form of, like, suppose if I'm telling you about the plan of my company, if I'm telling you about the policies of my company, अगर मैं कोई नोटिस इशू कर रही हूँ, अगर मैं आपको ये बता रही हूँ कि कल मीटिंग कितने बजे है, कहाँ पे मीटिंग है, दिस इज़ ऑल फॉर्मल कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज़ ऑल रिलेटेड with the organization, it is all related with the official matters, formal matters, nothing impersonal is there.
Okay, so who will be the superior, who will be the subordinate, what work you have to do, whose responsibility will be there in completing the task. Okay, who is having the authority, how much target you have to achieve, what is the objective of the company, which task you have to do, at what time you have to complete it. All these things are related to formal communication. So what are the features? So one thing more, that whenever I'm talking to you, right, whenever I'm doing some formal communication, most of the formal communication is preferred that it should be in written, because it will act as a proof then कि किसने information पास करी, किसको करी है, किस टाइम पे काम करने के लिए बोला था, डेडलाइन क्या थी, वो एक प्रूफ बन जाता है. अगर मैं ऑरली बोल के चली जाऊँगी तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा. सो वी वांट अ प्रूफ. ओके, मोस्टली हम अवॉइड करते हैं. आई कैन नॉट यू नो suppose if there is some for example some circular is there, and उस सर्कुलर पे जब वो सर्कुलर आता है स्कूल में तो हर टीचर के साइन होते हैं वो बोलने को, तो वो किसी को भी बोल सकते थे कि चलो इन्फॉर्मेशन पास कर दो. नहीं, फिर कोई भी टीचर कह सकता है कि हमें तो पता ही नहीं था, हमने काम नहीं किया. इट शुड नॉट बी लाइक दिस. इस करके वो हर टीचर के क्या करवाते हैं, साइन करवाते हैं. आपने देखा होगा मेड स्कूल स्कूल में बार बार उस टीचर के पीछे भागते रहते हैं जो उनको टीचर एंड में नहीं मिलता कि नहीं आपके साइन होने ज़रूरी हैं. वो इसलिए होता है क्योंकि अगर साइन हो जाएंगे वो एक क्या होगा, एक प्रूफ होगा. So what are the features? Goal oriented, basically why we do communication at formal places. It is all related to official matters because we want to achieve the goal. Second, most of the communication passes through scalar chain only. So that's why it is systematic. And I just hope that you people know what is scalar chain. Third is source of information. So whenever we are doing formal communication, so it becomes very easy that we can fix the responsibility. क्योंकि जब हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू जब हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करते हैं तो वो एक तरह का प्रूफ बन जाता है. ओके, इम्पर्सनल ये रिटन फॉर्म में ज़्यादा पास होता है, इस करके इम्पर्सन है. पर्सन टू पर्सन इतना नहीं होता है ये. मोस्टली इट इज़ डन थ्रू लाइक इशूइंग notices or memos, circulars. So these are all the forms of formal communication. Then the last feature is delay in information. अब क्योंकि स्केलर चेन के थ्रू फॉलो होना है तो उसमें टाइम लग जाता है. That's why delay is there. Now what are the types? So under formal communication we have 3 types: vertical, horizontal and diagonal. Okay, वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंडर भी 2 हैं, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड. So when the communication, when the information, whatever you want to pass, when that information is passed from top to bottom, then it is downward. And when it is from bottom to top, it is upward. So जब हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इट इज़ लाइक जब हम कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में बता रहे हैं, हम मीटिंग ले रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, हम प्लान के बारे में बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रहे हैं, हम किसी नोटिस के बारे में बात कर रहे हैं, तब ये सारा क्या होता है, डाउनवर्ड. क्योंकि जो नोटिस देना या प्लान बताना, पॉलिसीज़ बतानी है, वो सबॉर्डिनेट सुपीरियर को नहीं बताते, वो सुपीरियर ही सबॉर्डिनेट को बताते हैं हमेशा. सो इन दैट वे इट इज़ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. बट सपोज अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, जब हम ऊपर की तरफ इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं. सपोज़ हमें कोई कंप्लेंट है, हमें कोई सजेशन देना है, हमें कोई ओपिनियन देना है, हमारी कुछ ग्रीवियंसेस हैं, तो अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं फिर हम अपनी इंफॉर्मेशन को बॉटम से टॉप की तरफ पास करते हैं. सो दैट बिकम्स अपवर्ड कम्युनिकेशन. एंड नाउ अ डेज इट इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर बिकॉज जो आजकल के सबॉर्डिनेट्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि हमारे पास वर्किंग कंडीशन अच्छा हो, और वो डर के रहने में बिलीव नहीं करते हैं. दे बिलीव इन टू स्पीक अप, कि जो सही है, जो वो डिज़र्व करते हैं, उनका राइट है बोलना. सो दैट्स वाई दे स्पीक. इन दैट वे इट इज़ अ अपवर्ड कम्युनिकेशन. नाउ व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन? So I've told you that there are 3 levels of management: top, middle and lower. So in middle level there are so many departments: sales department, production department, marketing department, finance department, so many. So अगर उन सब डिपार्टमेंट्स के हेड, मार्केटिंग हेड, प्रोडक्शन हेड, सेल्स हेड, अगर ये सब के सब they are talking to each other, communicating something, because they are all at equal rank, सबकी status position same
लेवल पे है, सो व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग समथिंग इट इज़ हॉरिजॉन्टल। जैसे मार्केटिंग मैनेजर बात कर रहा हो प्रोडक्शन मैनेजर के साथ या सेल्स मैनेजर के साथ, जो उनके हेड्स हैं, मतलब हेड आपस में हेड्स ही बात कर रहे हैं सारे, सो इन दैट वे इट इज़ एन हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सेल एम्प्लॉई है, ठीक है, अगर वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड से बात कर रहा है रिगार्डिंग द मार्केटिंग प्रोसेस या कुछ प्रोडक्ट के बारे में वो बात कर रहा है, तो वो क्या है, डायगनल। वो क्योंकि वो दोनों सेम रैंक पे नहीं हैं, दोनों की जॉब पोजीशंस डिफरेंट लेवल पे, एक हेड है एक एम्प्लॉई है दूसरे डिपार्टमेंट का, एक हायर लेवल पे है एक लोअर लेवल पे है, सो दे आर पासिंग द इन्फॉर्मेशन और दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, इन दैट सेंस इट बिकम्स अ डायगनल कम्युनिकेशन। और ये तब सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इससे टाइम बहुत बचता है। अगर मुझे बात करनी है डायरेक्टली तो मैं टाइम क्यों वेस्ट करूँ, टू गो टू माई हेड। इतनी इनको अथॉरिटी दी है दैट यू कैन टॉक, क्योंकि कई बार कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं दैट वी नीड टू डिस्कस, एंड तब हमारे पास क्या काम आता है, डायगनल कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल जो बिल्कुल भी ऑफिशियल नहीं है, जैसे फ्रेंडली टॉक करने लग जाते हैं हम कई बार, वो बातें करते हैं जो ऑफिस के साथ रिलेटेड नहीं हैं, सोशल गैदरिंग्स करते हैं, सोशल इंटरेक्शन, कहीं पे जाके 4 एम्प्लॉयज़ बैठ के बात करने लग गए आराम से कि हाँ तूने कल कौन सी मूवी देखी, मैं यहाँ गई, मैं वहाँ गई, वट एवर। सो दीज आर ऑल इनफॉर्मल टॉक्स। और मैंने आपको बताया था हमारी सोशल नीड होती है तो उसको पूरा करने के लिए हम बात करते हैं, सो दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ सोशल नीड ओनली। अब जब हम कम्युनिकेशन पास करते हैं इनफॉर्मल में, जब हम फॉर्मल में पास करते हैं उसका एक प्रोसीजर है, जैसे स्केलर चेन के थ्रू हम पास करते हैं, लेकिन इनफॉर्मल में कोई पाथ नहीं है। जैसे ग्रेप वाइन देखना नेट पे, ग्रेप वाइन क्या होता है, उसका कोई पाथ नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होती, किसी भी तरफ इन्फॉर्मेशन घूम जाती है, जैसे गॉसिप फैलती है कि एक ने बात बताई, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ई एफ, पता नहीं सबके पास बात पहुंच जाती है, जिससे र्यूमर फैलता है। सो दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कन्फ्यूजिंग हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, सच भी हो सकती है, बट इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। सो व्हाट आर द फीचर्स? तो ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारी एक सोशल नीड होती है, इसलिए हम फ्रेंड्स बनाते हैं, इसलिए हम बात करते हैं। फास्ट, जितनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको सब कहीं पे, जैसे हमने देखा होगा कि मूवीज़ में कि यहाँ पे बॉम्ब है, कैसे वो बात फैलती है एंड एकदम से वहाँ पे सारा मेस हो जाता है, क्योस हो जाता है, राइट। लेकिन अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमें कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी है तो उसमें पूरा टाइम लगेगा, पहले ए टू बी जाएगा, फिर बी टू सी इन्फॉर्मेशन जाएगी, सी टू डी, डी टू ई टू एफ, इन दैट वे इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। लेकिन ये बहुत फास्ट है। अगर आपको कोई भी रूमर स्प्रेड करना है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर कभी भी इंफॉर्मेशन अनसिस्टमेटिक मैनर में जा रही है, और कई बार देखो वी हैव टू गो थ्रू वेरियस चैनल्स इनफॉर्मल, लेकिन इनफॉर्मल में हमें किसी ये नहीं कि, अब सपोज करो स्केलर चेन में मैंने ए टू बी बोला एंड सी को बोला ही नहीं, डायरेक्टली डी के पास बात पहुंच गई, वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज वी हैव टू फॉलो ईच लेवल, ईच ईच चेन, द होल चेन वी हैव टू फॉलो। लेकिन अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो उसमें हम चैनल का कोई ध्यान नहीं रखते हैं कि कैसे प्रॉपर वे है पास करने का इंफॉर्मेशन, इट जस्ट मूव्स इन जिगजैग मैनर। लीकेज, हाँ, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी लीक हो सकती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट इज़, अब हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के, मतलब स्ट्रैटेजिकली कहाँ यूज़ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये जो मैनेजर्स हैं, अगर इनको लग रहा है कि हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ कम्युनिकेशन गैप है, सही तरह से बात नहीं हो पा रही, इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन हो रहा है, वहाँ पे वो कुछ हद तक अगर इसको सही तरह से यूज़ करें, मतलब इसका नेगेटिव वे ना इसको यूज़ करें, इसको पॉजिटिवली यूज़ करें, तो वो सही है। इन दैट वे दे कैन यूज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एट देयर वर्क प्लेस। दूसरी बात, बहुत जल्दी ट्रैवल करते हैं, कई बार कुछ अर्जेंट मैटर्स होते हैं जो हम वेट नहीं कर सकते स्केलर चेन का, हमें इनफॉर्मल वे के थ्रू ही इंफॉर्मेशन पास करनी होती है, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ हम अगर पॉजिटिवली यूज़ करना चाहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को, तो ये 4 स्टेप्स हैं। थर्ड ये है कि जित सपोज़ अगर मैनेजर कोई चाहते हैं कि रिस्पांस पता करना चाहते हैं कि एक्चुअल में रिस्पांस क्या है, क्या चल रहा है, तो वो
इनफॉर्मल वे में जाके किसी भी चीज़ पे बात कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, क्योंकि अगर हम थोड़ा इनफॉर्मल हो जाते हैं तो हमें ज़्यादा सच रिव्यू, जो एक होता है ना कि जो सच बात है, एक ऑनेस्ट रिव्यू मिलता है हमें सुनने को। क्योंकि फॉर्मल वे में उनको थोड़ा डर हो सकता है, अगर सच बोल दिया वो ऐसे भड़क ना जाए या कुछ भी हो सकता है। बट इनफॉर्मल में से वो आराम से, टोन बहुत नॉर्मल होती है, फ्रेंडली टोन होती है, तो उसमें हम भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। सो वी कैन यू नो easily get to know कि what is actually in the mind of the employee or what we want to know. Then the fourth is कि कहीं ना कहीं जब हम इनफॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं तो एम्प्लॉयज़ थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाते हैं। एंड अगर हम जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूनियंस बनी होती हैं लेबर्स की, तो उनके साथ भी उनका अच्छा रिलेशन होता है। अगर फॉर्मल रहेगा तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता, थोड़ा सा इनफॉर्मल भी अच्छा रहता है। बट अगर आप इसको नेगेटिवली यूज़ कर रहे हो देन इट्स वेरी बैड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपकी जितनी भी सीक्रेट्स हैं वो लीक हो सकते हैं। एंड देयर कैन बी मेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, कोई सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं होगी, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। खुद तो एक पर्सन अपना टाइम वेस्ट करता है, साथ में 4 लोगों का और टाइम वेस्ट करेगा, अल्टीमेटली आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। सो दिस इज़ नॉट अलाउड। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस? फर्स्ट इज़ मीनिंग। मीनिंग इज़ क्लियर टू यू कि अगर हमें ऑफिशियल मैटर्स पे बात करनी है देन इट्स फॉर्मल। अगर हमें अनऑफिशियल मैटर्स पे बात करनी है, कुछ इंडिविजुअल ग्रुप्स अपने बने हुए हैं, उन लोगों ने अपने बारे में कोई बात करनी है, दैट इज़ इनफॉर्मल। रिलेशंस, अब फॉर्मल में क्योंकि स्केलर चेन है तो ऑटोमेटिकली सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप बन जाता है, बिल्कुल ओके। एंड इनफॉर्मल में हमारा जो है एक रिलेशनशिप हमारा हमारे ग्रुप के साथ होता है, उसके हम लीडर भी हो सकते हैं। नेचर, फॉर्मल कम्युनिकेशन थोड़ा रिजिड है, थोड़ा फिक्स्ड है, स्ट्रिक्ट वे में चलता है। इनफॉर्मल इज़ लाइक फ्लेक्सिबल। इट और डिपेंड करता है ये हर पर्सन के, इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। चैनल, स्केलर चेन फॉलो करते हैं हम फॉर्मल कम्युनिकेशन में। इनफॉर्मल में कोई चैनल नहीं है, जिगजैग मैनर में वो बिना किसी मतलब इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस। फॉर्मल इज़ इन रिटन, इनफॉर्मल ऑरल। कभी आपने देखा नहीं होगा कि अगर कोई र्यूमर कोई फैला रहा है या कोई इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है तो वो रिटन वे में कभी नहीं करेगा, वो बोल के ही करता है, क्योंकि ऐसे उसकी आइडेंटिटी पता नहीं चलती इजीली। नीड, फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, लेकिन इनफॉर्मल हमारी सोशल नीड है। स्पीड किस में ज़्यादा स्लो होगी? ऑब्वियसली फॉर्मल में होगी, बिकॉज वी हैव टू फॉलो द चेन। इनफॉर्मल इज़ वेरी फास्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करना किस में ईजी है? ऑब्वियसली फॉर्मल में, क्योंकि इट एक्ट्स एज अ प्रूफ। लेकिन जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में आई कहाँ से है, सच भी है नहीं है हमें नहीं पता, बस तो इन्जॉय कि चलो सच है तो भी ठीक है, झूठ है तो भी ठीक है, टाइम पास कर लो। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो रिकॉर्ड है वो हम फ्यूचर के लिए मेंटेन करके रख सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ इन रिटन। इनफॉर्मल में कोई रिकॉर्ड नहीं होता। आई थिंक देर आर 2 more differences, let me check. ओके, देर इज़ वन, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फॉर्मल में रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करना ज़्यादा ईजी रहता है, क्योंकि जहाँ से भी इंफॉर्मेशन आई है वो हमें पता है कि किसने इंफॉर्मेशन क्रिएट करी है। लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल इन दी, जस्ट अ सेकेंड, आई एम सो सॉरी, आई हैव रिपीटेड माई पॉइंट। ओके, सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर।